عید پینتیکوسٹ، روح القدس کے نزول کی عید۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ ان دنوں میں اسرائیل میں بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ بھی ایک عید منا رہے تھے، اور وہ عید منا رہے تھے جب موسیٰ کو خدا نے کوہ سینا پر حکم دیے تھے 10 احکام، اس کی عید اسرائیلی منا رہے تھے۔ اور پھر انہی دنوں میں وہ منا رہے تھے عید جو کاشتکاری کی عید ہے، جس میں جو فصل انہیں ملتی ہے اس کی عید وہ منا رہے تھے۔ اور انہی دنوں میں جب خداوند یسوع نے صلیب پر جان دینے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد شاگردوں سے کہا کہ روح القدس لو، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اور لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گئے۔ اور پھر خداوند یسوع نے 40 دن تک ملتا رہا، نظر آتا رہا، بادشاہی کی جو خوشخبری ہے اس کی باتیں سکھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا۔ اور جب 40ویں دن خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانا تھا، تو اعمال پہلے باب میں خداوند یسوع ایک بار پھر شاگردوں سے بات کرتے ہیں، اور لکھا ہے آئے تھفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ 5ویں آیت، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ 6 آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کئی دفعہ جو بہت سے دوست سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایماندار خداوند یسوع کے ایک شخص قبول کرتا ہے، پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، تو اسی وقت اسی دن وہ روح القدس پاتا ہے۔ ہاں، ایسا سچ ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا، وہ شاگردوں سے ملا اور اس نے کہا کہ روح القدس لو، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ اور یہ بھی سچ ہے جو یسوع مسیح نے اعمال 5 پہلے باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہا، کہ پھر سے پڑھتے 5ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب بپتسمے کا مطلب ہے بھر جانا، ڈوب جانا، کسی چیز کے سائے کے اندر آ جانا، آگے پیچھے سے کوئی چیز آپ کو اپنی کورنگ میں لے لیتی ہے، یہ ہے بپتسمہ۔ جب پانی کا بپتسمہ لیا جاتا ہے تو چھڑکنے سے کوئی بھی شخص جو ہے ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ جب وہ پانی کے اندر گہرے میں جاتا ہے، نیچے ڈوب جاتا ہے، تو اس طرح یہ بپتسمہ ہے۔ تو اسی طرح روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کئی بار ہم اسی بحث میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ روح القدس تو پہلے ہی مل جاتا ہے، تو پھر بپتسمہ کس چیز کا؟ روح القدس ملتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن روح القدس کی معموری روح القدس سے بھرنے کے لیے، تاکہ وہ زندگی کا دریا آپ میں سے جاری ہو، خداوند یسوع نے پہلے جی اٹھنے والے دن شاگردوں کو کہا کہ روح القدس لو، اور پھر آسمان پر جانے والے دن پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں وہ وعدہ تمہاری زندگی میں جو خدا باپ نے وعدہ کیا ہے، سالوں سے وعدہ، یوئیل کی معرفت جو وعدہ کیا گیا، وہ وعدہ جب تک تمہاری زندگی میں پورا نہ ہو، منتظر رہنا، ٹھہرے رہنا، جب تک وہ وعدہ تمہاری زندگی میں پورا نہ ہو۔ اور پھر 5ویں آیت میں خدا یسوع کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین
आमीन। तो जब पहले ईमानदार, जब शख्स एक खुदावंद को कबूल करता है, वो रूह कुछ पाता है, लेकिन उसकी मिकदार कम होती है। लेकिन जब वो रूह कुछ से भर जाता है, बपतिस्मा पाता है, तो वो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदली हुई होती है। जब ये शागिर्द जो है, जब जिस दिन यीशु इन पर जाहिर हुआ और रूह कुछ इन्होंने पाया, और फिर यीशु मसीह जाने लगा 40वें दिन, और फिर खुदा में यीशु उन्हें रूह कुछ के बपतिस्मे के बारे में बता रहा है। कोई दूसरा शख्स नहीं कह रहा, यहाँ पर पतरस नहीं कह रहा, पलूस नहीं कह रहा, यूहन्ना भी कह रहा है। लेकिन यूहन्ना की इंजील में कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें पानी और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। जो रूह कुछ का वो बपतिस्मा तुम्हें देगा, यीशु के बारे में। तो खुदावंद यीशु मसीह रूह कुछ का बपतिस्मा देता है, कोई खादम नहीं दे सकता। हाँ, रसूलों ने हाथ रखे, खादमों ने हाथ रखे और लोग रूह कुछ से भर गए, लेकिन रूह कुछ का बपतिस्मा देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसने शागिर्दों को कहा, जी उठने के बाद रूह कुछ लो, और उन्होंने लिया भी। और फिर जब आसमान पर 40वें दिन जाने लगा, उसने कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम यहीं पर ठहरे रहना। 8वीं आयत लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। तो जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में आता है, हम कुव्वत पाते हैं। और ये कुव्वत क्यों खुदा दे रहा है? ये कुव्वत खुदा यीशु की गवाही देने के लिए देता है, हमारी बल्ले बल्ले करवाने के लिए नहीं। रूह कुछ भी यीशु को जलाल देने के लिए दुनिया में काम कर रहा है, और हमें भी यीशु के गवाह बनना है। हमने यीशु की गवाही देनी है। रूह कुछ का ज़हूर जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए है, मेरी और आपकी तरक्की के लिए है, मुझे और आपको जोर आवर बनाने के लिए है। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम कुव्वत का लिबास पाओगे और मेरे गवाह होगे। अब गवाही कैसे दी जाती है? एक तो आप बोलकर गवाही देते हैं, और दूसरी आपकी जिंदगी दूसरों के लिए गवाही होती है। आमीन। आमीन। बहुत से लोग दावा करते हैं कि मैं रूह कुछ से भरा हुआ हूं, लेकिन उनमें रूह के फल नजर नहीं आते। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, पाकीज़गी, हिलम नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं हम रूह कुछ से भरे हुए हैं, हम रूह में मामूर हैं। शायद वो गैर जुबानों में दुआ भी करते हो, लेकिन बर्दाश्त, सब्र नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, सुलह दोस्त नहीं है। उनके अंदर जिस्म के काम है, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाचना, नशाबाजी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, लड़ाइयां, झगड़े। और फिर वो कहते हैं हम रूह कुछ से भरे हुए हैं। तो रूह कुछ से भरे होने से मुराद है कि आपके अंदर से रूह कुछ की नेमतें, रूह कुछ के फल नजर आए। आप तसव्वुर करें, अगर हम सब रूह कुछ से भरे हुए हों और हमें बोलना भी ना पड़े और रूह के फल हमारी जिंदगी से नजर हो, तो कितने लोग बदलना शुरू हो जाएंगे, कितनी जिंदगियां यीशु की कुदरत को हमारी जिंदगियों में देखेंगी। ईमानदार जब रूह कुछ से भरे हुए होंगे तो इब्लीस के कामों को तबाह कर रहे होंगे। अब इब्लीस के काम क्या है? इब्लीस कितने घरों को तबाह कर रहा है, पैसा खा रहा है, बीमार कर रहा है और बदरू गिरफ्तार कर रहा है, घरों में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, रोजगार से बरकत छीन रहा है। जन्म के लोग लंगड़े थे, जब यीशु मसीह उन्हें ठीक कर रहा था, वो इब्लीस के हाथों दुख सह रहे थे और यीशु उन्हें ठीक कर रहा था। आज भी वही रूह कुछ हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन खुदा कह रहा है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना, इंतजार करना, मुंतजर रहना, और फिर तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। आमीन। उन कामों को जो इब्लीस के काम है हमारे इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में, उनको तबाह करने के लिए हमें रूह कुछ की जरूरत है। हमें रूह कुछ की क्या है?
जरूरत है। हमें रूह कुद्स से भरना जरूरी है। फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें रूह कुद्स की जरूरत है। जब लूका 24:49 पढ़ते हैं, लिखा जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहना। आमीन। फिर अमाल पहला बाब 8वीं आयत जब हमने पढ़ी, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। तो ये कुव्वत किस लिए है? ये कुव्वत फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए है। इब्लीस हमें उलझाना चाहता है, वो हमें तबाह करना चाहता है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, हम दुआ में बढ़ रहे हैं, कलाम में बढ़ रहे हैं, हम खुदा में बढ़ रहे हैं, हमारे जिंदगी में रोज बरोज तब्दीली आ रही है, हमारे घर में तब्दीली आ रही है, हमारे रोजगार में बरकत आ रही है, और एकदम इब्लीस कोई ऐसे हालात क्रिएट करता है कि हम सारा काम छोड़कर उस तरफ लग जाते हैं। ये इब्लीस का काम है। वो आपको तबाह नहीं कर सकता। आपको तबाह करने के लिए वो आपको पटड़ी से उतारता है। हम सब रेल में सफर करते हैं, रेलगाड़ी में। तो रेलगाड़ी में अगर रेलगाड़ी पटड़ी से उतर जाए ना, तो उसको वापस पटड़ी पर लाने के लिए क्रेनें लानी पड़ती हैं। और अगर रेलगाड़ी रेलगाड़ी पटड़ी से उतर जाए तो तबाही बहुत ज्यादा होती है। उसकी जद में आने वाले घर, उसकी जद में आने वाली गाड़ियां, उसकी जद में आने वाले लोगों का नुकसान होता है। इब्लीस इसीलिए हमें पटड़ी से उतारता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये पटड़ी पर चलते रहेंगे तो ये वहां पहुंच जाएंगे यहां जो जाना चाहते हैं। ये कुव्वत से भर जाएंगे, ये और ज्यादा मजबूत ईमानदार बन जाएंगे, और इनके वसीला से बहुत से लोग यीशु के पास आएंगे। इब्लीस जानता है कि एक ईमानदार जो रूह कुद्स से भरा हुआ है वो उसके लिए ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत उस शख्स के जो अपने आप को ईमानदार तो कहता है लेकिन रूह कुद्स से भरा हुआ नहीं है। एक आम मसीह से उसे कोई डर नहीं है, लेकिन रूह कुद्स से भरे हुए ईमानदार से वो डरता है। उससे वो डरता है क्योंकि उसके पता है कि रूह कुद्स से भरा हुआ शख्स अख्तियार और कुव्वत से भरा हुआ शख्स है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु कह रहा, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। और जब ये अख्तियार कुव्वत से भरा हुआ होगा तो कितना ज्यादा पुरअसर होगा, कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, कितना ज्यादा इसके वसीला से तब्दीली आ रही होगी। इसलिए जरूर है कि मैं और आप अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करें कि रूह कुद्स से मैंने भरना है। और ये ख्वाहिश खुद गर्जी वाली ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि रूह कुद्स खुद गर्ज है ही नहीं है। वो हमें खुद गर्ज रहने नहीं देता। जब रूह कुद्स हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बायस होती है। हमारे टैलेंट्स, हमारा पैसा, हमारी खूबियां, हमारी दुआएं, हमारी नेमतें दूसरों के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसलिए रूह कुद्स से भरने की ख्वाहिश अपने अंदर हम पैदा करें। एक तो खुदा जो रूह कुद्स हमें कुव्वत देता है, वो हमें फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए देता है। फिर अंजील की मुनादी करने के लिए, जरूरी नहीं कि अंजील सुनाने के लिए हम पासबान हो, पादरी हो, मुबश्शिर हो। अगर हम रूह कुद्स से भरे हुए हैं, हम 1 to 1 अंजील सुना सकते हैं। अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों, उनके पास बैठकर हम यीशु की गवाही दे सकते हैं। हम बता सकते हैं यीशु ने मेरी जिंदगी में कैसे काम किए हैं। और जब आप यीशु के पास आ जाएंगे तो यीशु आपकी जिंदगी में क्या काम करेगा। हम ज्यादा रूहें जो है वो जीतने वाले बन जाएंगे। ये कुव्वत सिर्फ एक बार ही नहीं मिलती,
لیکن شاگرد روز بروز اس کی معموری کے لیے خدا سے کہتے تھے، ہر روز۔ اعمال 2 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ میرے عزیزو سنیں غور سے، خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم پرقوت پرزور زندگی گزاریں اور روح القدس سے بھر کر زندگی گزاریں۔ یہ شاگرد جنہیں یسوع کہہ رہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا، یہ ٹھہرے ہوئے تھے، بالا خانہ میں دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ ان کے اندر روح القدس کے لیے بھوک اور پیاس تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا آپ خدا کی حضوری میں پیش کیا ہوا تھا، اور جب یہ ٹھہرے ہوئے تھے تو پہلی آیت میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ پھر اعمال 4 باب اور اس کی 31ویں آیت میں پھر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ آمین۔ صرف ایک بار ہی ہمیں روح القدس سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے روح القدس کے نزول کے ایام میں ہم دعا کریں، ہم روزے رکھیں، ہم روح القدس کو مانگیں، بلکہ ہر روز ہمیں روح القدس کی مدد مانگنے کے لیے، روح القدس میں مامور ہونے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شاگرد بھی یہ کر رہے تھے۔ دوسرے باب میں آپ دیکھتے ہیں، پہلے باب میں وہ 10 دن دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دوسرے باب کے شروع میں روح القدس کا نزول ہوتا ہے، چوتھے باب کی 31ویں آیت میں وہ دوبارہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور لکھا ہے دلیری سے خدا کے کلام کو سناتے رہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 14ویں آیت سے 21ویں آیت۔ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے روح القدس کی قدرت میسر ہے، لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ہم خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمارے لیے اس کی قوت اویلیبل ہے، میسر ہے۔ یہ قدرت ہمیں دی گئی ہے روح القدس سے بھرنے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو صرف اپنا آپ پیش کرنا ہے۔ افسیوں 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ آمین۔ پولس یہ دعا کر رہا ہے کیونکہ ہم سب خداوند یسوع کے وسیلہ سے خدا کے خاندان سے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج تو لوگ دنیا میں کسی بڑے خاندان کے ساتھ جن کا تعلق ہونا تو جناب بڑا ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آپ خدا باپ کے خاندان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔
خدا آپ کا باپ ہے، اس دنیا کا خالق اور مالک آپ کا باپ ہے، اور وہ آپ کو زور اور قوت دینا چاہتا ہے۔ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ قدرت میسر ہے۔ پولس دعا کر رہا ہے کہ خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں مسیح یسوع مسیح میں پشت در پشت عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ تو خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ قوت میسر ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ خدا نے یہ قوت ہمیں دی ہوئی ہے۔ آج سے 2024 سال پہلے جب روح القدس نازل ہوا شاگردوں پر یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، تب سے جب سے کلیسیا کا جنم ہوا، چرچ کا جنم دن ہے یہ آج، اور جب سے روح القدس کلیسیا میں کام کر رہا ہے، ایمانداروں کے لیے یہ قوت میسر ہے۔ لیکن کن ایمانداروں کے لیے میسر ہے؟ جو اس قوت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے روزگار پر، اپنی منسٹری میں ہمیں ہر روز روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے، ہر روز، تاکہ ہم قوت سے بھرے ہوئے خدمت کر سکیں اور زیادہ مؤثر اور پر اثر ہو سکیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور معموری سے معمور ہونا چاہتے ہیں، تو یہ 5 کام آپ نے اپنی زندگی میں ان کو ترجیح دینی ہے۔ پہلا کام، خدا کے کلام کو نگل لیں۔ ہر روز آپ کی یہ پریکٹس ہو، عادت ہو کہ آپ نے کلام کو پڑھنا ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے کام کی جگہ پر بائبل مقدس رکھی ہوئی ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ قوت سے بھرنا چاہتے ہیں لیکن کلام سے بھرنا نہیں چاہتے۔ کلام ہی اصل وہ قوت ہے۔ جب آپ کلام سے بھرے ہوتے ہیں، دراصل آپ قوت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کلام سے بھرا ہوا ایماندار، وہ مسیح نوجوان، وہ مسیح گھرانہ جو کلام سے بھرا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ قوت سے بھرا ہوا ہے۔ کلام سے بھرنے کے لیے اپنا آپ پیش کریں۔ آج تو جدید دور ہے، یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے سرمن ملیں گے۔ 300 سے زیادہ پیغامات ہمارے چرچ کے، CRC پاکستان کے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے۔ آپ کلام کو پڑھیں۔ آج تو بولنے والی بائبلز ایپ آ گئی ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ سنیں، کلام کو MP3 پہ لگا دیں، اپنے گھر میں کلام کو سنیں، کلام کو ذخیرہ کر لیں اپنے اندر، اپنی یہ خواہش بڑھائیں کلام پڑھنے کی۔ آپ اور میں ایک بار کلام کو پڑھ لینا کور ٹو کور تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، میں جی پوری بائبل ختم کیتی ہوئی۔
मैंने दुनिया में ऐसे लोग पढ़े देखे हैं जिन्होंने 30-30 बार 40-40 बार बाइबल मुकद्दस को कवर टू कवर पढ़ा हुआ है, लेकिन मजाल है फख्र उनकी जिंदगी में कुव्वत से भरे हुए लोग हैं। उन्होंने अपने खुदा के कलाम को निगल लिया है, अपने अंदर जज्ब कर लिया है। कलाम को पढ़े। अगर आप कुव्वत से भरना चाहते हैं, कलाम से भरें, कलाम को निगल लें, जज्ब कर लें। खुदा आपको शोर टापे के लिए कुव्वत नहीं देगा, मशहूरी के लिए कुव्वत नहीं देगा। खुदा आपको कलाम सुनाने के लिए कुव्वत देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें रूह कुद्स की कुव्वत इसलिए देगा अपनी मुनादी करने के लिए, कलाम की मुनादी करने के लिए। इसलिए हमें उसके कलाम से हर रोज भीगने की जरूरत है। अपनी ख्वाहिश बढ़ाएं कलाम को पढ़ने की। खुदा का कलाम जिंदगी है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम होकर हम आदमियों के दरमियान रहा। यीशु मसीह कलाम है। जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को सुनेंगे, कलाम पर तवज्जो करेंगे, कलाम को जज़ब कर लेंगे, कलाम पर आप ध्यान और ज्ञान करेंगे, कलाम को अपने सामने से, अपने मुंह से हटने नहीं देंगे, आप उतना ही ज्यादा कुव्वत से भरते जाएंगे। आपकी जिंदगी में उतनी ज्यादा तब्दीली आएगी, बरकत आएगी, आप उतनी ज्यादा सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे। लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम बहुत सारे इब्लीस के झूठों से आजाद हो जाएंगे। फलां तुझसे खुश नहीं है, फलां तेरी बरकत चोरी करता है, फलां तुझसे हसद करता है, फलां ने तुझ पर जादू कर दिया है, फलां ने तेरी चोरी कर दी है, फलां जो है वो तेरे बारे में ये सोचता है। जितना ज्यादा कलाम से आप भर जाएंगे, ये सारी इब्लीसी सोचें, इब्लीसी हमले सारे साइड पे हो जाएंगे और आपकी आंखें ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगी रहेंगी। आमीन। तो रूह कुद्स हमें कुव्वत देने के लिए जो है वो भेजा गया है, उसको नाज़िल किया गया है। तो कुव्वत से भरने के लिए हमें कलाम से भरना पड़ेगा। बाइबल खुदा का ला तब्दील कलाम है। जैसे ये लिखा है इसे वैसे ही पढ़ें, जैसे ये लिखा है इसको वैसे ही पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। और हर बार जब आप पढ़ेंगे, खुदा मुकाशफात और भेदों को आप पर खोलेगा और खुदा की कुदरत जो है वो आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है। लिखा है ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। अगर चाहते हैं कि आपका ईमान बढ़े, आप और ज्यादा ईमान में बढ़े, कलाम पढ़े, कलाम सुने, कलाम पर तवज्जो करें। हमें रूह कुद्स की कुव्वत की जरूरत है फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए, यीशु मसीह की मुनादी करने के लिए, इब्लीस के कामों को तबाह करने के लिए। हमें रूह कुद्स की जरूरत है। कलाम से भरें, कलाम को अपने दिल में रख लें। जितना ज्यादा आप कलाम से भरेंगे, उतना ज्यादा आप कुव्वत से भरेंगे। आमीन। दूसरी, आपने दूसरा काम क्या करना है? खुदा के चेहरे की तलाश करें। अपने चेहरे को मुझ पर जलवागर फरमा। खुदा को जाने, खुदा को पहचाने। हमें ईमानदारी से खुदा के चेहरे की तलाश करनी है। सिर्फ जुबानी कलामी नहीं,
ईमानदारी से पर्सनली पोशीदगी में अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके हमें खुदा के दीदार के तालब होना है। हमें कहना है खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। मूसा खुदा के दीदार का तालिब है। आप उसकी जिंदगी को देखें, कैसी जबरदस्त जिंदगी है। जब ये रुल्कुस से भरा हुआ वापस लौटता है, पहाड़ से जलती हुई झाड़ी में इसको तजर्बा होता है खुदा की आवाज सुनने का, खुदा की झलक जो खुदा उसे दिखाता है, उस जलती हुई झाड़ी का तजर्बा। और जब ये वापस आता है तो लोग इसके चेहरे पर खुदा के नूर को देखते हैं। आमीन। और वो कहते हैं मूसा अपने चेहरे को ढांप ले, क्योंकि हम तेरे चेहरे की जो नूर है उसकी ताब नहीं ला सकते। खुदा के दीदार के तालब हों। अगर आप इस दुनिया में हैं तो बेमकसद नहीं है। उस मकसद को पूरा करने के लिए खुदा के दीदार के तालब हों। अपना आप पेश करें खुदा को, अपना आप वक्फ कर दें, दे दें उसे। जितना ज्यादा आप खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे उतनी ही ज्यादा खुदा की कुदरत आप में से बह निकलेगी। आमीन। ये शागिर्द क्या कर रहे थे? कलाम मुकद्दस बयान करता है ये हर रोज जमा होते थे, दुआ करते, रोटी तोड़ते, रफाकत रखते, कलाम मुकद्दस की तालीम एक दूसरे को देते। हर रोज खुदा के हजूर आने से आप खुदा के दीदार के तालिब होते हैं। आमीन आमीन। जितना ज्यादा हम उसकी हजूरी में आएंगे उतना ही ज्यादा हम खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएंगे और खुदा की कुदरत हम में से बह निकलेगी। अमाल पहला बाब 14वीं आयत लिखा, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन हालेलुया। कुव्वत पाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आपको एक तरफ आना पड़ता है। मैं दुनिया को भी खुश करूं और खुदा को भी खुश करूं, इस तरह कुव्वत नहीं मिलेगी। कुव्वत का लिबास मिलेगा जब हम एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहेंगे। जब हमारा रूह, जान, बदन हम यीशु मसीह को देंगे, फिर कुव्वत मिलेगी। जब हम ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ उसके दीदार के तालब होंगे, फिर खुदा की कुव्वत हम में से बह निकलेगी। आमीन। शागिर्दों की जिंदगी में कुव्वत उस वक्त आई जब उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। बाला खाना में अपने आप को क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। दुआ में मशगूल रहे, लगे रहे, उसी काम में लगे रहे। अब हमारे तो प्रॉब्लम ये है कि हम हर घंटे हमारा अलग ही शुगल होता है। काम पर हमारे शुगल अलग है, फारग वक्त पे हमारे शुगल अलग है, और दुआ के वक्त हमारे शुगल अलग है। लेकिन ये किस में मशगूल रहे, किस में मगन रहे, किस में लगे रहे? दुआ में। हाँ, ये अपना काम भी करते होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसी दुआया थी, ऐसी मजबूत थी कि इन्होंने कई जगह पर इनकार भी किया। जब इब्लीस इनका पैसा और इनका वक्त चोरी करना चाहता था, इन्होंने कहा कि हम दुआ और कलाम की खिदमत करते रहेंगे।
आमीन आमीन। ऐसी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने आप को वक्फ किया है। हमें अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाल कर उसके दीदार की तलाश करनी है, उसके दीदार के तालब होना है। वक्त मुकर्रर करें। यीशु मसीह भी जब 40 दिन बियाबान में था तो रूह कुद्स से मामूर वापस लौटा। आमीन आमीन। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने जोर, अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने मंसूबों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने जोर, अपनी ताकत, अपना पैसा, अपनी स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम रूह कुद्स से भरे हुए कर सकते हैं। हम रूह कुद्स से भरे हुए उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए हमें रूह कुद्स से भरना जरूर है। तो पहला कदम उठाना है, कलाम से भरना है। कलाम पढ़ें। अगर आप पढ़ सकते हैं, आप खुश नसीब हैं। और अगर आप पढ़ना जानते हैं और फिर भी बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, तो आप जैसा शख्स दुनिया में जो है वो नहीं है, बेवकूफ शख्स नहीं है। अगर आप पढ़ना जानते हैं, पढ़ें, इसे निगल लें, इसे जज़ब कर लें, ये आपके अंदर से निकले, ये आपके दिल में हो। लेकिन जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हम बाहर आता है। कलाम दिल में होगा, कलाम बाहर आएगा। आमीन। फिर हम उसके चेहरे की तलाश करें। हम उसके चेहरे की, हालेलुया। तो जब हम उसके चेहरे की तलाश करें तो जरूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें अपना आप। हम रूह कुद्स के मंसूबों, रूह कुद्स के मकासद को जानने के लिए ध्यान लगाएं। कई दफा उसकी हजूरी में भी हमें अपने मंसूबे, अपने मकासद याद आते हैं। जब उसके हजूर आए तो रूह कुद्स की ताबेदारी में पेश करें। खुदा का खादम बैनी हिंद, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बड़ी जबरदस्त किताब है। वो लिखते हैं कि कई बार 16-16 घंटे सिर्फ वो कलाम पढ़ने और दुआ करने में गुजार देता। क्या आज ऐसे दलेर ईमानदार हैं जो वाकई अपने आप को पेश कर दें, सुपुर्द कर दें खुदा के? आमीन। तीसरा कदम जो है, कलाम में खुदा के जो वादे हैं उन पर ईमान लाएं, यकीन रखें। आमीन। गलतियों 3:5, जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में वादे हमारे साथ किए हैं उन पर ईमान रखें, यकीन रखें, शक ना करें। लेकिन बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजे जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? इब्रानियों 11:6, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान रखे कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अगर हम ईमान में जिंदगी नहीं गुजारते तो हम रूह कुद्स की कुव्वत में जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। बहुत से मसीह ईमानदार दुआ भी बहुत करते हैं, कलाम भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, शक करते हैं, डावाडोल हो जाते हैं। समुंदर की लहर की मानिंद है, जैसी थोड़ा सख्त वक्त आया फौरन ही फिसल जाते हैं, डर जाते हैं। खुदा पर ईमान रखें, खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत नजर आएगी। आमीन आमीन। लूका 11:13, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों नहीं देगा? आमीन हालेलुया। ईमान रखें कि जो मांगेगा उसे मिलेगा,
जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाए। ईमान से मांगे, अपनी कमियों पर नहीं, खुदा के फजल पर निगाह करें और खुदा से रुल्कुस मांगे और दुआ करें, उसकी हजूरी में वक्त गुजारें, और आप हैरान हो जाएंगे खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। आज से ही खुदा कहना शुरू करें, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि ईमान कैसे बढ़ सकता है, कलाम को पढ़ने के वसीला से, कलाम को सुनने के वसीला से। खुदा आपको अपनी ममूरी से ममूर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि मसीही बहन अपने बच्चों की परवरिश रुल्कुस से भरी हुई करे। खुदा चाहता है एक मसीही भाई अपने बच्चों की परवरिश रुल्कुस से भरा हुआ करे। खुदा चाहता है कि मसीही नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए रुल्कुस से भरा हुआ काम करे। ये खुदा की ख्वाहिश है, खुदा ये करना चाहता है हमारी जिंदगी में। लेकिन क्या हम रुल्कुस से भरने के लिए अपना पेश करते हैं, या हम पटड़ी से बार बार उतर जाते हैं? लेकिन अगर आप रुल्कुस से भरे हुए जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा वो सारे काम आपके वसीला से करेगा जो वो आपके वसीला से करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो पहला काम क्या है? खुदा के कलाम को निगलने और फिर उसके चेहरे की तलाश करें, और फिर उसके वादों पर ईमान लाएं, उसके वादों पर। और चौथा, उसमें कायम रहें। उसमें क्या रहें? अगर इस पंखे की तार को हम डिस्कनेक्ट कर दें बिजली से, तो क्या यह पंखा चलेगा? कभी नहीं। प्लीज, हमें क्यों खुदा से डिस्कनेक्ट करना चाहता है? दूसरे कामों में डालकर, दुनियादारी में डालकर, ताकि रुल्कुस की कुदरत हम में ना हो। बड़ी खास बात है जिसे हम भूल जाते हैं। कुव्वत हासिल करना काफी नहीं है, रोज बरोज उसमें जिंदगी गुजारने की जरूरत पड़ेगी। जो डाली दरख्त के साथ जुड़ी रहती है, वो फल लाती है, हरी भरी रहती है। और जो डाली काट दी जाती है वो सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कायम रहने के लिए कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है, उसके कलाम पर अमल करना है, रफाकत करनी है, खुदा के हजूरी में मशगूल रहना है। जब यूहन्ना 14 बाब हम पढ़ते हैं, आप घर जाके जरूर इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा और उस पर ध्यान ज्ञान कीजिएगा, लेकिन हम उसकी 12वीं आयत से शुरू करते हैं। यूहन्ना 14 बाब उसकी 12वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, बल्कि बाप बेटे में जलाल पाएगा। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। 15वीं आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती हो ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। यीशु पहले उनके साथ था और अब वो उनके अंदर होने थे। एक बड़ा जबरदस्त तजर्बा है ये। रुल्कुस शुरू से ही काम कर रहा है। पुराने आदनामे में आप रुल्कुस को कुदरत के साथ काम करते देखते हैं। पानी के 2 हिस्से कर रहा है रुल्कुस, नबियों के वसीला से बड़े बड़े काम कर रहा है रुल्कुस, लेकिन रुल्कुस उनके साथ रहता था, अंदर नहीं होता था।
लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया कि पहले वो तुम्हारे साथ था, अब वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये डिफरेंस है। कितना खूबसूरत ये वादा है, अजीम वादा। पहले वो हमारे साथ है, अब वो हमारे क्या है, अंदर है। तो एक बात ज़हन में रखें, हमें पाक बर्तन बनना है रुलकुस के लिए। रुलकुस पाक बर्तनों में बसेरा करता है। जब यूहन्ना 15 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम रहती है तो फल कायम ना रहे तो फल नहीं ला सकती, उस तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। कायम रहना लाजमी है। वो चीजें जो हमें कायम नहीं रहने देती, हमें उन्हें यीशु के नाम से अपनी जिंदगी से निकालना है और हमने खुदा से मदद मांगनी है, फजल मांगना है, ताकि हम उसमें कायम रहें। और 5वीं बात, रुलकुस से भरने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने आपको दुख दिया है, नुकसान पहुंचाया है, आपके ऊपर जुल्म किया है, अगर आप दूसरों से मोहब्बत नहीं करते तो आप कभी भी रुलकुस से नहीं भरेंगे। आप यीशु मसीह की जिंदगी देखें, मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी है। शागिर्दों की जिंदगी देखें, मोहब्बत से भरी जिंदगी है। पौलुस रसूल को देखें, मोहब्बत पर बड़ा जबरदस्त पैगाम उसने दिया है। यीशु ने हुक्म दिया है यूहन्ना 15 बाब 12 आयत में, मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन, हालेलुया। जैसे मैंने तुमसे क्या किया, मोहब्बत रखी है, तुम भी क्या करो, एक दूसरे के मोहब्बत रखो। और फिर 16वीं आयत में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। 17वीं आयत, मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया से प्यार किया। मोहब्बत से भरे लोग असल में कुव्वत से भरे लोग होते हैं। नफरत, हसद, कीना, गुस्सा, क्रोध, कड़वाहट, इनसे भरे लोग कभी कुव्वत नहीं पा सकते। अपनी खिदमत के आखिरी अयाम में यीशु ने ज्यादा जोर एक दूसरे से मोहब्बत करने पर दिया। और इसको बयान कैसे किया, एक दूसरे के पांव धोकर, उनके पांव धोकर उस खिदमत को बयान किया। आए मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत कि यीशु को पता भी है कि इस दस्तरखान पर एक ऐसा शख्स है जो मुझे पकड़वाएगा, तो फिर भी यीशु ना सिर्फ उसके पांव धो रहे हैं बल्कि रोटी भी उसके साथ तोड़ रहे हैं, उसको नवाले खिला रहे हैं। आए ऐसी मोहब्बत करें। अगर हम यीशु की कुव्वत से भरना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हम कुव्वत का लिबास पाएं और हम यीशु के गवाह बने, आए हम मोहब्बत से भर जाएं। आए कलाम को निगल लें। आए हम खुदा के चेहरे के तालब हों, तलाश करें। आए हम खुदा के वादों पर ईमान रखें, शक ना करें। आए उसमें कायम रहें और आए एक दूसरे से मोहब्बत करें। कुछ भी हो जाए एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, एक दूसरे की बेहतरी चाहते रहें और खुदा आपकी जिंदगी में कुदरत वाले काम करेगा। आए अपनी आंखें बंद करें खुदावंद के हुजूर।